IMF نے 400 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور IMF کے ماہرین 200 یونٹ تک صارفین سے بل قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق ہوا، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین بلوں کی قسطیں کرا سکیں گے۔ صارفین کو تاریخ گزرنے کے بعد ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ ملک بھر میں آج نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تجزیے برآمد کیے جائیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ CTD کی جانب سے کوئٹہ کے علاقے اکبر میں کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے ان کا اپنا گرفتار ساتھی بھی مارا گیا۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے سے خودکشیہ کے 5 دستی بم اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ترجمان CTD کے مطابق ہلاک افراد کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے ضلع چترال کے علاقے کیلاش میں 2 چوکیوں پر حملہ کر دیا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے بڑے گروپ ضلع چترال کے علاقے کیلاش میں 2 چوکیوں پر حملہ کیا گیا۔ بہادر جوانوں نے حملے کا بہت مؤثر جواب دیا، جس کے باعث دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ بہت زیادہ تعداد میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی میں توسیع کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس صفرانی کی۔ بشرا بی بی وکلا سلمان صفدر، انتظار پنجوتا اور نعیم پنجوتا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTI کے صدر پرویز الہی کی رہائی کے بعد پھر گرفتاری پر دائر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے رہائی کے بعد پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی، جس میں IG اسلام آباد، DC، SSP آپریشنز، SHO تھانہ شالیمار اور دیگر کو فریق بنایا گیا تھا۔ اچھی خبر، ڈالر کی اڑان کا سلسلہ رک گیا، روپے کی قدر بحال ہونا شروع ہو گئی۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر 98 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 306 روپے ہو گئی۔ اسپاٹ مارکیٹ میں مثبت رجحان برقرار۔ اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 51 پوائنٹس کا اضافہ۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 45,858 پوائنٹس ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔
کرکٹ ٹیم تھوڑی دیر تک ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں اپنے بقیہ میچز کھیلنے کے لیے لاہور سے کولمبو روانہ ہو گئی۔ ایشیا کپ کے دوسرے مرحلے کے لیے سپر 4 ٹیمیں سری لنکا کے شہر کولمبو پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم آج سری لنکا پہنچ کر کل آرام کرے گی، جبکہ 9 ستمبر سے ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا۔ قومی ٹیم 2 دن آرام کے بعد 13 ستمبر کو ٹریننگ کرے گی۔ اور امریکہ نے کہا کہ افغانستان میں جنگی ساز و سامان امریکہ نے نہیں بلکہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چھوڑا تھا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے افغانستان میں کوئی ملٹری ساز و سامان دہشت گردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ کہا کہ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے۔ صدر بائیڈن کو احساس ہے کہ پاکستان کو ابھی بہت خطرات کا سامنا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بریٹن کا باقاعدہ خاص میں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 7 ستمبر کا دن یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں پاک فضائیہ نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے جنہیں ساری دنیا جانتی ہے۔ ہماری فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائیہ میں ہوتا ہے۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے سرحد کے اس پار بھارتی پائلٹ ابھی نندن کے طیارے کو مار گرا کر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ یوم فضائیہ کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے فہیم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی چند بہترین ایئر فورس میں ہوتا ہے۔ پاک فضائیہ نے 65 کی جنگ میں پرانی طرز کے سائبر طیاروں سے جدید ہنٹر اور مگ طیارے شکار کیے۔ ایم عالم نے طیارہ مار گرانے کا ریکارڈ قائم کیا جو ہماری روشن تاریخ ہے، اور اب پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں سے لیس ہے، جن میں F-16 دور جدید کا بہترین جیٹ طیارہ جس میں انتہائی طاقتور ریڈار سسٹم، جدید میزائل سسٹم اور فضائی برتری ثابت کرتا ہے۔ تھنڈر 17 پاک انجینئرز کا کارنامہ ہے، وزن میں ہلکا جدید میزائل سسٹم کے ساتھ فضائیہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ F-7P بمبار طیارے، مگ طیاروں کی سیریل اور انتہائی رفتار کے حامل معراج طیارے پاک فضائیہ میں شامل ہیں۔ کیمرامین حمزہ کے ساتھ فہیم صدیقی، KN نیوز ساہیوال۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ IMF نے 400 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور IMF کے مابین صرف 200 یونٹ تک صارفین سے بل قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین بلوں کی قسطیں کرا سکیں گے۔ صارفین کو تاریخ گزرنے کے بعد ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا۔ دستاویزات وزارت خزانہ کے مطابق بجلی بلوں میں ایک ساتھ قرائد کا ریلیف اگست 2023 کے لیے دیا جائے گا۔ 200 یونٹ تک کے بل کی اقساط سے 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ IMF نے بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ریکوری بہتر کرنے پر بھی زور دے دیا ہے۔ 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ IMF نے 400 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت اور IMF کے مابین صرف 200 یونٹ تک صارفین سے بل قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین بلوں کی قسطیں کرا سکیں گے۔
توشخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بیوی کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بشرا بیوی کے خلاف توشخانہ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر آباد سپرا نے کی۔ بشرا بیوی بکلا سلمان صفدر، انتظار پنجوتھا اور نعیم پنجوتھا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی۔ اس موقع پر تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ انہیں سابق خاتون اول کی گرفتاری مطلوب ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ بشرا بیوی کی آڈیو فرانزک کے لیے ایف آئی اے کو بھیجی ہوئی ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ 3 گھنٹے بلایا جاتا ہے اور بٹھائے رکھتے ہیں۔ تفتیش کے دوران بتایا بھی گیا کہ مذکورہ آڈیو بشرا بیوی کی نہیں ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے تو آڈیو کہاں سے آ گئی؟ ایف آئی آر کے مطابق کیس کو لے کر چلیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ عدالت سے استدعا ہے کہ بشرا بیوی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے بشرا بیوی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ میرپور ساکرو رپورٹ شاہد سمون اوسی داپچی میں قومی شاہراہ پر داپچی کے شہریوں مرد خواتین نے مہنگائی سے تنگ آ کر روڈ بند کر دیا ہے۔ احتجاج، نعرے بازی، وائس اور شہریوں نے کراچی ٹھٹھا مین شاہراہ بند کر دی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ حکومت نے ہر طرف سے چیزوں کو مہنگا کر دیا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سمیت پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی۔ مظاہرین ہم 2 وقت کا کھانا بھی اب نہیں کھا سکتے۔ مہنگائی نے جینا محال کر دیا۔ چینی کا ریٹ بھی آسمان تک پہنچ چکا ہے۔ مظاہرین حکومت نے اگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں کیا تو پورے شہر کو بند کر دیا جائے گا۔ مظاہرین ایس ایچ او دھابے، جی ڈی ایس پی ساکرو کے مذاکرات جاری ہیں۔ ملک بھر میں نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں روایتی جلوس اور تعزیے برآمد کیے جائیں گے۔ اس دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی ہائی الرٹ بھی جاری رہے گی۔ کراچی میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا اور روایتی رستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی پر 6000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رینجرز کے اہلکار بھی موقع پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کی مدد سے جلوس کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے موقع پر شہر بھر میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق جلوس کے دوران ہیلی کیم اڑانے پر پابندی ہوگی۔ لاہور میں چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس حویلی الف شاہ سے برآمد ہو گیا ہے، جو مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا گام شاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لاہور پولیس نے سیکیورٹی پلان تیار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز علی رضوی کے مطابق مرکزی جلوس پر 4000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پولیس جوانوں کے ساتھ رضاکار بھی چیکنگ کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ماتھلی میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک پہنچا۔ جلوس میں ماتھلی اور گرد و نواح کے علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے راؤ شکیل کی اس رپورٹ میں۔ ماتھلی چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا، اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک پہنچا۔ جلوس میں ماتھلی اور آس پاس کے گاؤں دیہاتوں سے بڑی تعداد میں عزاداران نے شرکت کی۔ جلوس میں ماتم سینہ کو بھی زنجیر زنی کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جلوس کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سول اسپتال انتظامیہ اور عہدی رضاکاروں کی جانب سے عزاداران کو طبی امداد فراہم کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ شکیل، KNN ماتھلی۔
चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा के हवाले से जुलूस बरामद। चेहलम हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा अकीदत व इकराम के साथ मनाया जा रहा है। चेहलम के मौके पर छोटे बड़े मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। मातमी जुलूस में शेर शाह फजल, अब्बास शाह नूरानी का काफिला, पचल शाह बुखारी समेत गुल इमाम बारगाह काफिले अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा हैं। मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। मातमी जुलूसों के रूट्स पर सीसीटीवी कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। मातमी जुलूसों के रूट्स पर खारिजी और दाखिली रास्तों पर खारदार तारें भी लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के सदर परवेज इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी पर दायरे तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिहाई के बाद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें आईजी इस्लामाबाद, डीसी, एसपी ऑपरेशंस और एसएचओ थाना शालीमार और दीगर को फरीक बनाया गया है। समाअत के आगाज पर अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही को रिहा नहीं किया गया। इस पर वकील सफाई ने बताया कि परवेज इलाही को रिहा करने के बाद पुलिस लाइंस के पास से फिर से गिरफ्तार किया गया है। इस पर अदालत ने कहा कि परवेज इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फर्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। इस पर अदालत ने कहा कि फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अगर किसी और केस में गिरफ्तार किया गया है तो वो मामला मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट नए सिरे से देखेगी। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि परवेज इलाही तो गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए थे, जब इन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई। वकील ने कहा इस अदालत के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। आपको बताएं कि सीटीडी की जानिब से कोयटा के इलाके अगबर्ग में कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से उनका अपना गिरफ्तार साथी भी मारा गया। दहशतगर्दों के ठिकाने से खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक अफराद का ताल्लुक अल-अदम तंजीम से है। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द कचलाक में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों के कत्ल में भी मुलविस थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने दवाइयात की कीमतों में इजाफे का इम्कान रद्द कर दिया है। विफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि फार्मा इंडस्ट्री 250 से ज्यादा दवाओं की कीमतों में इजाफा चाहती है और फौरी तौर पर दवाओं की कीमतों में इजाफा मुमकिन नहीं हो सकता। हुकाम का कहना है कि दवाओं की किल्लत कीमतों में इजाफे के लिए दबाव डालने का बहाना है। 8 से 10 दवाएं छोड़कर तमाम दवाएं फार्मा इंडस्ट्री को मुनाफा कमा कर दे रही हैं। हुकाम के मुताबिक दवाओं की कीमतों में इस साल 14 और 20% तक इजाफा किया गया है। दवाओं की कीमतों में इजाफे का फैसला अगली मुंतखब हुकूमत ही कर सकती है। पहली तरजीह अवाम को दवाओं की फराहमी मुमकिन बनाना है। निगरान वफाकी वजीर सेहत वजीर डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि फार्मा इंडस्ट्री के साथ मिलकर मामलात हल करने की कोशिश जारी रहेगी। अवाम के लिए अच्छी खबर, डॉलर की उड़ान का सिलसिला रुक गया है, जिसके बाद रुपए की कदर बहाल होना शुरू हो गई है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद डॉलर की कीमत 306 रुपए हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान बरकरार रहेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और कारोबार के दौरान इंडेक्स 45,858 पॉइंट ट्रेड करते भी देखा गया है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए।
मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की जानिब से रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी है। काबिज भारतीय फोर्सेज ने जिला पूंछ में फायरिंग करके 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी के दौरान गुज़िश्ता माह अगस्त में 8 कश्मीरियों को शहीद किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में मावराए अदालत भी कत्ल किया गया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत कादरी का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में करोड़ों लोग 2 वक्त के खाने से भी महरूम होकर रह गए हैं। हुक्मरान अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। आवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हक की नुमाइंदगी अदा करने की बजाय असम्बलियों में ज़ाती मफादात के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सलमानी से सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत कादरी ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जर्नल अहले सुन्नत जनाब सरवत एजाज कादरी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं मौजूदा मुल्क की सूरत हाल, जो कि इस वक्त देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में महंगाई है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, और इसी तरह मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आपका क्या कहना है? यकीनन ये हालात जो आज हम जिस नहज पे पहुँचे, ये मुसलसल पॉलिसियों में नाकामी और स्टेबल ना होना हुकूमत का, और डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने हमें तबाही की तरफ पहुँचाया, $, की कीमत, ये सब चीज़ें, इसमें मजमूई तौर पे देखो तो हम सब का हाथ है। यानी ये तमाम सियासी पार्टियां जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, जो आवाम के वोट से मुंतखब होकर इस असम्बली के अंदर पहुँची हैं, और उनका वो किरदार अदा ना करना, इस गुज़िश्ता हम 2 साल अगर हम देखें तो इशू जो था महंगाई थी, इशू क्या था, पेट्रोल था, इशू क्या था, बिजली थी, और मौजूदा सूरत हाल थी। लेकिन हम ये समझे थे कि गुज़िश्ता 2 साल जो गुजरे इसके अंदर ये सब चीज़ें बदल जाएंगी, मुल्क में चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी आज तक जितना भी देखा जाता है, जितनी भी हुकूमत आती है, वो जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डालती है और कहती है कि ये सारे कारनामे पिछली हुकूमत के हैं। अब जितनी हुकूमतें आती हैं इसी तरह करती रहेंगी तो बेहतरी कौन ला सकता है? 75 साल से एक ही बात सुन रहे हैं कि हम नाजुक दौराए से गुजर रहे हैं। ये नाजुक दौराए का कोई लिमिट है, कोई टाइम है? 75 साल तो हो गए इस नाजुक दौर से गुजरते हुए। अच्छा, वो नाजुक दौर सिर्फ कौम के लिए क्यों है? वो नाजुक दौर सिर्फ आवाम के लिए क्यों है? वो नाजुक दौर इन लीडरों के ऊपर क्यों नहीं आता? आप जो सबसे बड़ी खराबी देखें, आपके मुल्क के अंदर बिजली फ्री, आपके मुल्क में पेट्रोल फ्री, आपके मुल्क में टैक्स फ्री, आपके मुल्क में मेडिकल फ्री, वो लेकिन वो मेरा और आपका नहीं है, वो इन लीडरशिप का है। इनके खजाने भरे, इनका आप देखें, इनकी हर चीज़ फ्री है, हमारी नहीं होगी। हम अपनी कौम पे कुर्बान करते हैं। आज से हम मेडिकल के फैसिलिटीज़ हमारी नहीं होगी, हम अपनी इस कौम पे कुर्बान करते हैं, इस गुर्बत पे कुर्बान करते हैं। दर्द तो ये है, आवाम जो आपको अपने कंधे पे बिठा के लेकर आ रही है, और ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम अपने मंशूर पे अमल नहीं करते। बिल्कुल जी, इंजीनियर सरवत एजाज कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो कार्डिक सेंटर चूनिया में डॉक्टर बादशाह हुजूर बन गए, अमले को जाती खिदमत गुजारी पर लगा दिया। मातहत कोर्ट सीट पर बिठाकर खुद ड्यूटी से गायब भी रहने लगे। अफसर शाही की फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली। MS की सरपरस्ती में अस्पताल का निजाम दिरहम बरहम हो गया। अस्पताल की सिक्योरिटी पर खर्च किए गए लाखों रुपए मट्टी में मिल गए हैं। अफसर शाही और करतूत छुपाने के लिए कई कमरों से सिक्योरिटी कैमरे भी उतार दिए गए। डिप्टी DHQ OR CEO हेल्थ की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर रह गई है। शहरियों ने सेक्रेटरी सेहत, वजीर सेहत और वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर राना इरफान हैदर मौजूद हैं, उनसे। जी राना साहब बताइएगा। जी, अक्सर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चूनिया में मौजूदा MS की सरपरस्ती में अस्पताल का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है।
आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर बादशाह सलामत बनकर मतहत अमले को खिदमत गुजारी और मुट्ठी दस्ते के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो ड्यूटी से गायब है और मतहत अमले का एक मुलाजिम जो है वो कुर्सी पर बैठकर जो है मरीजों को टाल मटोल के साथ और ध्यान रखने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरों की बात करें तो अपनी अफसरशाहियों को छुपाने के लिए एमएस के हुक्म पर अस्पताल के कई कमरों से सिक्योरिटी कैमरे उतारकर फेंक दिए गए हैं, जहां वजीर आला पंजाब और वजीर सेहत आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदा दिखाई दे रहे हैं। वह तहसील चूनिया में महकमा सेहत ने अस्पताल को महज एक मजाक बनाकर रखा हुआ है। शहरियों का कहना है कि इन थके हुए डॉक्टर्स और गैर जिम्मेदार अनासर के खिलाफ फिलफोर कार्रवाई करते हुए संजीदा रवैये के हामिल डॉक्टर्स की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को सेहत की बेहतर सहूलियात मिल सके। और ये जो भोंडा मजाक इस वक्त अस्पताल में चल रहा है, कैमरे उतारना और ये मुलाजमों को अपने जाती इस्तेमाल में खिदमत गुजारी के लिए इस्तेमाल करना, ड्यूटी से गायब होना, इन सब चीजों से शहरी जो है वो काफी परेशान है। और गुज़िश्ता रोज भी जो है कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ कि मरीज को अस्पताल से उठाकर सड़क पर फेंक दिया। उस पर भी शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सेहत से नोटिस का मुतालबा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बिहाड़ी में पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इन कैशमेंट और पेंशन में कमी के खिलाफ अगीगा और एप्का की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने धरना भी दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली की क़यादत चेयरपर्सन अगीगा अजरा अब्दुल हई, सदर अगीगा मुनव्वर अली भट्टी, आसिफ खुम्मन, ताहिर अलवी, आबिद खुम्मन, मैडम सईद कंवल, चौधरी साजिद, आमिर जट, गुलाम नबी अल्लाह दत्ता, एडी मोहम्मद बूटा, चौधरी सरवर, चौधरी शहजाद, ताबिश और मोहम्मद अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौके पर इत्तेकाद करते हुए चेयरपर्सन अगीगा अजरा अब्दुल हई ने कहा कि हम चाहते किसी भी महकमे में हों, लीव इनकैशमेंट और पेंशन हमारा हक है। हुकूमत को क्या इख्तियार है कि वो हमसे ये हक छीने। मुनव्वर अली भट्टी ने कहा कि पेंशन में कमी किसी सूरत काबिल कबूल न होगी। आज का ये एहतजाज साबित कर देगा कि हम अपना हक लेना भी जानते हैं। आसिफ घुमर ने कहा कि महंगाई, पेट्रोल, बिजली की कीमतों में इजाफे से पहले ही आवाम पिस रही है। अगर ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन की मुराद को खत्म कर दिया जाए तो सरकारी मुलाजमीन भी सड़कों पर आ जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो मुलाजमीन दमादम मस्त कलंदर के लिए भी तैयार हैं। हज़रत अली अजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स मुबारक की मुनासबत से उसके दूसरे रोज भी चौधरी आबिद जफर गुज्जर की जानिब से डेरा गुजरा पर तकरीर का इनेकाद किया गया। मजीद बता रहे हैं सुलेमान शाह अपनी इस रिपोर्ट में। हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें सालाना उर्स मुबारक की मुनासिबत से उर्स के दूसरे रोज भी डेरा गुजरा पे तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चौधरी आरिफ जफर गुज्जर, चौधरी तारिक जफर गुज्जर, चौधरी काशिफ गुज्जर, चौधरी आतिफ गुज्जर, चौधरी मंजूर गुज्जर, चौधरी मंसूर गुज्जर, चौधरी मकसूद गुज्जर, चौधरी उसामा आबिद गुज्जर, चौधरी एहसन अली आबिद गुज्जर, चौधरी एहसान अली आबिद गुज्जर, चौधरी उस्मान गुज्जर, चौधरी रेहान गुज्जर, चौधरी उमैर गुज्जर, चौधरी अली गुज्जर, चौधरी विकी गुज्जर, चौधरी लब्बा गुज्जर, लाडा गुज्जर के भाई बहू जहा सुल्तान गुज्जर, चौधरी अफजल गुज्जर, सोनी भाई, चौधरी चांद गुज्जर समेत शहर की कारोबारी, समाजी व सियासी शख्सियात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया। डेरा गुजरा के ऑनर चौधरी आबिद जफर गुज्जर और दीगर का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, अस्सलाम वालेकुम। उर्स मुबारक पे आबिद भाई को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया लंगर का डेरा गुजरा पे, बहुत रौनक लगी। ज़ाहिर इनको खुशामदीद कहते हैं। ये हम उस दातागंज पे आए हैं और आबिद गुज्जर साहब की शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी और ये माशाल्लाह लंगर कर रहे हैं। और बहू साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया। जैसे कि आपको पता है कि सिलसिला दाता दूसर का उर्स मुबारक का चल रहा है, आज उसका दूसरा रोज़ है और ज़ाहिर इनकी बड़ी तादाद यहाँ पे माशाल्लाह मौजूद है। डेरा गुजरा पे लंगर का इंतजाम वसी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का जिन्होंने हमें तौफीक दिया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया
और बहु एजाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, चौधरी अफजल साहब का, भट्ट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये इन्होंने यहाँ पे हमें खिदमत का मौका दिया। और बाद में मैं 6 सितंबर के हवाले से बात करना चाहता हूँ। पाक आर्मी को सलाम और शोहदा को सलाम। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद आमिर चौधरी और मोहम्मद वकास मूसा ने दीगर ओहदेदारों के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नेट मॉनिटरिंग पॉलिसी में तब्दीली पर मीडिया रिपोर्ट्स पर तफ्तीश का इजहार किया। हुकाम और स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया है कि वो मुल्क के पायदार तवानाई के मुस्तकबिल के एक अहम सतून के तौर पर नेट मॉनिटरिंग की हिमायत जारी रखें। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद आमिर चौधरी ने मोहम्मद वकास मूसा, मोहम्मद इशफाक अली खान, राना अब्बास, मोहम्मद अली रफीक, मोहसिन शौकत के हमरा मकामी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेट मीटरिंग साफ और सस्ती तवानाई की मुंतकिली में एक संगे मील के तौर पर तस्लीम किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली पर गौर कर रही है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। असल मसला बिजली की चोरी का है। हुकूमत तकसीम कार कंपनियों को हदायत जारी करे कि बिजली चोरी की शरह को कम से कम सतह पर लाया जाए, और इसी बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जों में इजाफा हो रहा है। ये बेसिकली जो है हमें रूमर्स काफ़ी सुनने को मिल रही हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे नेट मीटरिंग पे कोई पॉलिसीज बनाने जा रही हैं या इसको बंद करना जा रही हैं। अभी आपके इल्म में होगा कि पिछले 10-12 दिनों से मीडिया में भी आ रहा है कि लोगों के बिल जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो जिसकी एक वजह गवर्नमेंट ये भी बता रही है कि सोलर मैक्सिमम लग रहा है। जबकि हमारा ये मानना और हमारा मुतालबा भी ये है कि बेसिकली इसकी ना 2 वजूहत है। एक तो आपकी है कि करेंसी जो है आपकी वो बहुत डीवैल्यू हो रही है, और दूसरा जो कैपेसिटी की पेमेंट गवर्नमेंट ने पेमेंट्स जो करनी होती है कैपेसिटी की मद में, वो इसकी मेन वजह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहम्मद वकास मूसा ने कहा कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन में 300 से जायद कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। पाकिस्तान में सोलर की बहुत खपत है। नेट मीटरिंग के जरिए सस्ती बिजली सिस्टम में मुंतकिल होती है। हुकूमत की फराहम करदा बिजली महंगी होने की वजह से अवाम का सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल होने का रुझान बढ़ रहा है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर हमारा जो मेन मकसद था वो ये है कि इस वक्त मार्केट में कुछ रूमर्स चल रही हैं, कुछ आप समझ लें इंडिकेशन इस तरह की आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेट मीटरिंग के ऊपर कुछ चेंजेस लाने के बारे में गौर कर रही है। तो हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद था वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और मीडिया को और अवाम को हम नेट मीटरिंग और सोलर के कुछ बेनिफिट्स बताएं कि किस तरह पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन की वजह से और जो सोलर लग रहा है पाकिस्तान में उससे किस तरह से मुल्क को फायदा हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि नेट मीटरिंग के हवाले से पॉलिसी को तब्दील न किया जाए, और अगर ऐसा किया गया तो जो लोग सोलर एनर्जी की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं उनकी हौसला शिकनी होगी। नाज़रीन, यौम दिफा की मुनासबत से दरबार हजरत सखी मादलाल हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह में सूफी बुजुर्ग वारिस शाह की हीर पढ़ने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। तकरीब की सदारत चेयरमैन मजहबी अमूर कमेटी दरबार हजरत सखी मादलाल हुसैन मेहर फारूक अहमद ने की, जबकि तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन मेहर फारूक अहमद का कहना था कि यह सिलसिला 50-60 साल से जारी है। तकरीब में हीर पढ़ने वालों ने समा बांधते हुए शुरका से खूब दाद समेटी। तकरीब के इख्तिताम पर तंजीम नौ के हवाले से दस्तार बंदी भी की गई, जबकि बेहतरीन हीर पढ़ने वालों को नगद इनाम से भी नवाजा गया। तकरीब में चेयरमैन मेहर उमर फरूक गुड्डू, चेयरमैन शफाकत अली, चौधरी फकीर हुसैन गुज्जर, चौधरी शबीर मियां मर्तजा और आतिफ शाह ने खसूसी शिरकत की। साबिक वजीर आला पंजाब मियां हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद लाहौर के निजी होटल में किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में अरकान कौमी व सूबाई असम्बली के साथ साथ चेयरमैन व वाइस चेयरमैन ने कसीर तादाद में शिरकत भी की। तकरीब में हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह का केक भी काटा गया। लीग रहनुमाओं ने कायद हमजा शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए लंबी उम्र की दुआ की है। इस मौके पर लीग रहनुमाओं ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह हर मकतबा फ़िक्र के ताजरों और लायर्स हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूनियन के कारकुनों, लीडर्स हों, सब के सब मियां हमजा शहबाज साहब के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। और आज की सैकड़ों की तादाद में इस तकरीब में जो शिरकत है ये ज़ाहिर करती है कि हम मियां हमजा शहबाज साहब की जमात के लिए बड़ी खिदमत हैं।
एज जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले जो है आम आदमी को रिलीफ देने के लिए आटे को सस्ता किया, घी को सस्ता किया, इन्हीं चीज़ों पे फोकस किया। सर देखिए, हमजा शहबाज जो है वो कारकुनों के दिलों में बसता है, और कोई कारकुन चाहे वो पंजाब के किसी कोने से हो, बाई नेम उनको वो जानता है। तो कारकुनों की मोहब्बत जो है वो आज देखिए आप, आज हर तबका फिक्र के लोग यहाँ पे मौजूद है। तो हमजा शहबाज की मोहब्बत की वजह से लोग जो है उनको आज अपनी मोहब्बतों में, चाहतों में, खुशियों में आज उन्होंने हमजा शहबाज को याद किया है जी। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर, अपने कायद हमजा शहबाज शरीफ साहब को दिल की, वो कहते हैं ना, था गहराइयों से मुबारक देती हूँ। और मैं आपको बताऊँ, हमजा शहबाज जो है ना वो मोहब्बतों का सफ़ीर है। वो बड़े ही मान, जो वर्कर का एक मान होता है ना, उन सब का पासदार का नाम हमजा शहबाज है। हमें बतौर वर्कर जब कभी हमें किसी बात की ज़रूरत होती है तो हम सबसे पहले जो दौड़ते हैं ना, तो हमजा शहबाज शरीफ की तरफ दौड़ते हैं। उसकी एक वजह ये कि उन्होंने एक फैमिली लिंक हमसे बनाया है, और वो जब भी मिलते हैं वो इसी तरह महसूस होता है कि एक बड़ा भाई मिल रहा है। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हमारे हर दिल अजीज़ लीडर हैं, उनकी बर्थडे, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह हर शोबे के लोग जो हैं वो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारी तरफ से हमजा शहबाज साहब को दिली हैप्पी बर्थडे। स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए अरबों रुपए लागत से बनाई गई डॉल्फिन और इमरजेंसी 15 की कॉल पर फौरी एक्शन करने वाली पुलिस के जवान मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब होने के बाद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। लाहौर की सड़कों पर गश्त करने वाली डॉल्फिन और पैरो पुलिस की मुताबिक मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। स्पेयर पार्ट्स मौजूद न होने की सूरत में पेट्रोलिंग में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से लाहौर की सड़कों पर डॉल्फिन और पीरू गश्त करती थी, ये फोर्स बनाई गई थी स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन मोटरसाइकिलों की अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल का जो सामान है, जिसको स्पेयर पार्ट्स कहा जाता है, वो लाहौर से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो महंगे दामों, 50 लाख रुपए की ये हैवी बाइक मोटरसाइकिल हो गई है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है 20-20 करके जो है वो इसको खरीदा जाएगा। लेकिन लाहौर की सड़कों पे जब ये मोटरसाइकिल नई नई रवां दवा हुई थी तो पुलिस एहलकार भी बड़े खुश थे, जो कि डॉल्फिन के जवान थे, क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड भी ज्यादा थी। किसी भी चोर डाकू को गिरफ्तार करने के लिए बआसानी ये जो इस्तेमाल में आ जाती थी। लेकिन अब ये मोटरसाइकिलें जो है वो दर्जनों की तादाद में मोटरसाइकिलें खराब हो गई हैं। किसी का इंजन खराब है तो किसी का जो है वो टायर खराब है, क्योंकि ये लाहौर से बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दूसरे जिला से भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन डॉल्फिन हेडक्वार्टर जो है वो वहां पर वर्कशॉप बनी है, सिटी हेडक्वार्टर में वर्कशॉप बनाई गई है। जिस तरह से 6 डिवीजन है, 6 डिवीजनों में जो है वो मुख्तलिफ वर्कशॉपें बनाई गई है, लेकिन वहां जो इनके मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वो उनको भी इस मोटरसाइकिल की समझ नहीं आ रही। लेकिन लाहौर की सड़कों के ऊपर डकैती की वारदात जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पहले डाकू जो है वो मोटरसाइकिल का जब 125 का इस्तेमाल करते थे तो हैवी बाइक उनका पीछा करके उनको गिरफ्तार कर लेती थी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि मोटरसाइकिलें जो है वो हैवी बाइक जो कि डॉल्फिन की है वो खराब पड़ी है थानों के अंदर, क्योंकि मोटरसाइकिल का वजन ज्यादा है। अगर कहीं पंक्चर हो जाए तो इसका जो है वो पंक्चर भी नहीं लगता, और दीगर जो सामान है वो भी लाहौर से नहीं मिलता। खासकर डॉल्फिन के जवानों से जब मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि जिस तरह से डाकुओं का पीछा करने में बड़ी आसानी होती थी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, अब ये मोटरसाइकिलें खराब हो गई हैं। इससे जो है वो दीगर मोटरसाइकिलें जो है वो वारदात करके वहां से निकल जाती है, लेकिन ये इनका पीछा नहीं कर पाती। खासकर अगर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिलें जो है वो इनका सामान लाहौर से नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये गुबार का मंजर जो है वो नजर आ रहा है इसके अंदर। और खासकर देखा जाए तो इसमें ये भी चीजें नजर आई है कि जिस तरह से पुलिस अफसरान ने महंगी तरीन ये मोटरसाइकिलें खरीदी थी डॉल्फिन का गश्त करने के लिए, अब ये मोटरसाइकिलें जो है वो कबाड़ के भाव फरोख्त की जा रही हैं। किसी का जो है वो हेड नहीं है तो किसी का सिलेंडर नहीं है, और किसी के शाक जो है वो नहीं मिल रहे। तो इसलिए लाहौर की सड़कों में डकैती की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। पहले पूरे लाहौर के अंदर जिस तरह से 84 पुलिस स्टेशन है तो जो है वो डॉल्फिन गश्त करती थी, पीरू की गाड़ियां गश्त करती थी। अब आपको लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको डॉल्फिन नजर नहीं आएगी, पीरू नजर नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ियां भी जो है वो खराब है, गाड़ियां ठीक नहीं करवाई जा रही। इसके अलावा जो डॉल्फिन की मोटरसाइकिलें हैं वो भी खराब है, जिसकी वजह से इलाका में गश्त नहीं होता। जो जिस इलाका में पुलिस का गश्त नहीं होगा, डॉल्फिन का गश्त नहीं होगा, वहां पर डकैती की वारदात बढ़ती चली जाएगी। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डॉल्फिन पुलिस जो है वो गश्त नहीं कर रही। वही इलाके जहां पर डॉल्फिन पुलिस गश्त करती थी पूरे गैंग गिरफ्तार किए जाते थे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि मोटरसाइकिलें खराब होने का जो ये भयानक मंजर है, ये गुबार का मंजर जो है वो नुमाया कर
सकती, तो उन इलाकों में भी जो है वो डॉल्फिन अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि डॉल्फिन की मोटरसाइकिलें खराब हो चुकी हैं और डॉल्फिन के जवान जो है वो उन इलाका में गश्त करने नहीं आते। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस और 2017 से कबल के मजीद 35 शोहदा की फैमिलीज को घरों की तामीर के लिए प्लॉट्स फराहम कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीपीओ में मुनाकिदा तकरीब में गुजरांवाला रीजन के पुलिस शोहदा के अहले खाना को प्लॉट्स के मलकियती कागजात दिए। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि हम अपने शोहदा को नहीं भूले, हर कदम पर उनके अहले खाना बच्चों के शाना बशाना खड़े हैं। 14 की फैमिलीज को नेक और मुखैर अफराद के ताउन से तमाम सहूलियात से आरास्ता रिहायशी स्कीमों में प्लाट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शोहदा की फैमिलीज को प्लॉट्स पर घरों की तामीर के लिए इंडोमेंट फंड भी मिलेगा। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला की 2017 से कबल के तमाम शोहदा की फैमिलीज के घरों की तामीर के लिए बतदरीज प्लाट्स फराहम किए जा रहे हैं। एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल आईजी वेलफेयर रियाज नजीर गारा और आरपीओ गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ, जीआईजी वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन और जीआईजी आईटी एहसन यूनुस ने भी तकरीब में शिरकत की। दूसरी जानिब आलूदगी के खात्मे और आवाम की सहूलियत के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की सरबराही में अहम इजलास मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब ने इको फ्रेंडली माहौल दोस्त बसों के हवाले से तबादला ख्याल कर किया। इजलास में कौन कौन शरीक था और क्या क्या फैसले किए गए, ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मोहम्मद आसिम राजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने ट्रांसपोर्ट को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने का फैसला किया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की जेर सदारत इको फ्रेंडली माहौल दोस्त बसों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें नुमाइंदा वर्ल्ड बैंक मिस्टर क्रिस्टोफर निदा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट प्लानिंग नादिया शफीक, सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल मांगड़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, डायरेक्टर प्लानिंग यूनिट वसीम अकरम, जीएम प्लानिंग पीटीसी मलक उस्मान और दीगर भी शरीक थे। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने सूबे भर में माहौल दोस्त बसों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। अहमद जावेद काजी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें फायदेमंद साबित होंगी, जिससे आलूदगी के खात्मे के साथ साथ फ्यूल की भी बचत होगी। इजलास में पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड बैंक के मुतल्लिक दो तरफा तावन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इको फ्रेंडली बसें चलने से जहां माहौलियाती आलूदगी कम होगी, वहीं पर मुसाफिरों को मियारी सफरी सहूलियात भी मुयसर आएंगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर शाहिद मुनीर की यौम दिफा के हवाले से यादगार शोहदा पर हाजिरी, यादगार पर फूलों का गुलदस्ता रखा। उन्होंने पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियों को खैराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा कि दफाए वतन की खातिर जानो माल कुर्बान करने में हमारे असल हीरो हैं। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा कि कौम वतन अजीज के दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के शाना बेशाना खड़ी है। इस मौके पर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मुल्क की सलामती और शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मंसूरा में बेलगाम महंगाई, बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस और पेट्रोल की इजाफी कीमत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, वो जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सिराजुल हक का कहना था, तब्दील होती है हुकूमत लेकिन निज़ाम इसी तरह कायम रहता है। एक हुकूमत जाती दूसरी आती है, इसी तरह जुल्म की निज़ाम की चौकीदारी जारी है। पीटीआई के बाद पीडीएम और पीडीएम के बाद निगरान हुकूमत। अवाम का ख्याल होता है कि हमारे हालात बदलेंगे,
लेकिन हकीकत सब एक स्टेटस के पासबान है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा था अवाम तकलीफ में है तो IMF से अपील करेंगे, बिल किस्तों में लेने की इजाजत लेंगे। शायद IMF वालों ने फोन कॉल भी नहीं सुनी। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं बिजली की कीमत में इजाफे को वापस लें। लोगों के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुर्बानी देनी है तो अशरफिया जिन्होंने मुल्क को और अदारों को लूटा है। सरकारी अफसरान बिजली के बिल नहीं देते। कौम का मुतालबा है इनकी मुफ्त बिजली बंद की जाए और अवाम को रिलीफ दिया जाए। 500 अरब से जायद की बिजली चोरी होती है जिसका नुकसान अवाम को होता है। अशरफिया का बोझ डालते हैं, अवाम पर डालने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम इजलास बुला रहे हैं लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। सेहत कार्ड की सूरत में अवाम को जो सहूलत मिलती थी इससे गायनी और दीगर इलाज को भी निकाल दिया गया। पानी के बिल में भी इजाफा कर दिया गया। मुल्क में रिकॉर्ड गंदम की पैदावार हुई। गंदम की पैदावार, गन्ने की पैदावार रिकॉर्ड हुई। इसके बावजूद कीमतों में इजाफा होता है। पहले लोग 10 किलो 20 किलो आटा खरीदते थे, अब 1-2 किलो आटा मुश्किल से आता है। लोग कहते थे कुछ ना बदलो तो दाल पका लो। दाल की कीमत में भी इतना इजाफा हो गया है, वो भी पहुंच से बाहर है। मुल्क में चोर बाजारी काम करने के लिए हुक्मरान तैयार नहीं है। शुगर माफिया की वजह से चीनी की कीमत में इजाफा हुआ। पूरी सियासत और निजाम माफियाज की गिरफ्त में है। ये माफियाज उन जमातों पर सरमायाकारी करते हैं। ऑफशोर कंपनियों में इन्हीं माफिया का पैसा है। कल से जनूबी पंजाब में इख्तिजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। इख्तिजाजी जलसे और जुलूस होंगे। 18 सितंबर को पेशावर गवर्नर हाउस और 21 को पिंडी में, 22 को मुल्तान में। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्टा ने फरीदकोट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के जरिए अवाम को चौधरी परवेज इलाही की करप्शन के 4 अदद केसेस के बारे में आगाही देना था। इसी पर मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्टा ने फरीदकोट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के जरिए अवाम को चौधरी परवेज इलाही की करप्शन के केसेस बारे आगाही देना था। सोहेल जफर चट्टा ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने दारुल हिंसा कंसल्टेंट की तरफ से जमा करवाए गए लाहौर मास्टर प्लान में जालसाजी की और कंसल्टेंट के तरतीब दिए गए मास्टर प्लान में जाली कागजात का इजाफा किया और जरी जमीन को रिहायशी और कमर्शियल अराजी बनाने की कोशिश करके 10 से 12 अरब का माली मफाद हासिल करने की कोशिश की। और डायरेक्टर जनरल सोहेल जफर चट्टा का मजीद कहना था कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली में मेरिट से हटकर मुख्तलिफ ग्रेड्स की 300 से जायद असामियों पर मनपसंद अफराद की गैर कानूनी तानियातियां की। उन्होंने कहा कि मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए टेस्टिंग सर्विस के मुरत्तिब शुदा रिजल्ट में रद्दोबदल करके मेरिट पर आए उम्मीदवारों की हक तलफी की गई। सोहेल जफर चट्टा ने कहा कि माली मुफादात के लिए चौधरी परवेज इलाही ने रहीम यार खान शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी में 30,000 मैट्रिक टन का इजाफा किया और क्रशिंग कैपेसिटी 12,000 मैट्रिक टन से यकमुश्त 42,000 मैट्रिक टन कर दी गई, जो कि खिलाफ कानून और तयशुदा असूलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उन्होंने एक शुगर मिल की कैपेसिटी को ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए 2 के बराबर कर दिया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन सोहेल जफर चट्टा ने मजीद कहा कि साबिक वजीर आला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर एक गैर सरकारी मुलाजिम की तानियाती की और डेपुटेशन की आड़ में जाती मुलाजिम मोहम्मद खान भट्टी को सूबे के सबसे अहम ओहदे पर फाइज किया। इस तरह एक ऐसा शख्स जिसकी तलीमी काबिलियत सिर्फ FA है, जो पंजाब की असम्बली के मेयार में भी पूरा नहीं उतरता, उसको पूरे सूबे के सियाह सफेद का मालिक बना दिया। एक सवाल के जवाब में सोहेल जफर चट्टा ने कहा कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब भर में करप्ट और बदअनवान अनासिर के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयां करता रहेगा। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट कोहिनूर। सरबराह लाहौर पुलिस ने कहा कि लाहौर पुलिस ने चेहरे में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत दाता गंज बख्श के सालाना उर्स के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। शहर भर में मुनक्किद होने वाली मजलिस और जुलूसों की भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना था कि मरकजी अज़ादारी जुलूस के साथ साथ उसको भी 3 दर्जाती हिफाजती हसार में मुबैनी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। CGP लाहौर ने मजीद ये भी कहा कि आज़ादारों और ज़ायरीन को मुकम्मल तलाशी के बाद भी जुलूस में दाखिले की इजाजत होगी। मरकजी जुलूस के रूट में आने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। मजीद क्या कहा, मुतल्लिका पुलिस अफसरान मुंतजमीन आज़ादारी जुलूसों मिजाज के साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं। पंजाब जुडिशियल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम पंजाब भर में तैनात 20 एडिशनल सेशन जजेस और 26 सिविल जजेस के वफ्द का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। शोबा फोरेंसिक मेडिसिन में पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट्स और दीगर के बारे में आगाही दी गई। ग्रुप के सरबराह डायरेक्टर प्रोग्राम एकेडमिक मंसूर अहमद खान, सरबराह शोबा तिब्बी शरई डॉक्टर फरीहा तारिक ने
कोर्स के शुरा को बाद मरग मुआयना मेडिकल लीगल और दीगर मामला पर ब्रीफिंग दी। शुरा को मुताबिक पोस्टमार्टम दिखाए गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तैयारी के मुताबिक भी तफसीलात फराहम की गई। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने यूनिवर्सिटी की 163 साल शानदार तिब खदमात पर रोशनी भी डाली। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जारी तदरीसी तहकीकी सरगर्मियों और नए तरक्याती मंसूबों के बारे में शरका को तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर शरका का कहना था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का असल काम तिब्बी तालीम, तिब्बी तहकीक और इल्म को फैलाना है। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा लेबर का पंजाब भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए क्रैक डाउन और आगाही मुहिम जोरों शोर से जारी और सारी है। 15 साल से कम उम्र बच्चों के मुशक्कत वाले कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। डिवीजन और जिले सतह पर स्पेशल चाइल्ड लेबर कंप्लायंस सेल्स का कयाम भी अमल में लाया जा चुका है। महकमा लेबर की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी पर 50 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं और 15 अफराद को गिरफ्तार भी करवाया जा चुका है। जबकि चेकिंग के दौरान बाजियाफ्त होने वाले 20 बच्चों को महफूज मुस्तकबिल और तालीम के हसूल के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लिटरेसी डिपार्टमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को रेफर भी किया गया। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद ने लेबर डायरेक्टर को रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। सेक्रेटरी लेबर ने अफसरान को हिदायत की है कि आवाम के लिए चाइल्ड लेबर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए मखसूस हेल्पलाइन कायम की जाए। और कोहिनूर स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह खबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।